है ना। तो ये था अपना दिस जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ द नर्व इम्पल्स। तो सबसे पहले समझो कि उसका मीनिंग क्या होता है। जनरेशन का मीनिंग क्या होता है? टू जनरेट सम काइंड ऑफ इम्पल्स। और हमेशा याद रखना कि अपने नर्वस सिस्टम के अंदर द जनरेशन, ओके, द इम्पल्स विच इज जनरेटेड इनसाइड आवर नर्वस सिस्टम इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। ठीक है, वो कौन से फॉर्म में होता है? दैट इज इन द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। ये बेसिक है। Okay, so we will focus that how this electrical impulse is generated। मतलब next जो slides है उसमें हम लोग ये देखेंगे कि electrical impulse generate कैसे होता है, and then how it is conducted from one part of the axon to the other part of the axon, and then we will see कि how the same information or the impulse is transmitted from the one neuron to the next neuron। ठीक है, अपने को यही सीखना है इसमें। इज इट क्लियर? ये अपने माइंड में क्लियर रखो। अपने को सीखना क्या है? हाउ द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इज जनरेटेड and how it is conducted, okay, and after that we will learn how it is transmitted from one neuron to the next neuron। but इतना क्लियर है सबको माइंड में? ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट, देखो मतलब कि व्हाट आर द स्पेशल फीचर, मतलब क्यों इसके, मतलब व्हाई द न्यूरॉन इज आल्सो ओनली दिस फॉर्म लाइक कैन जनरेट some kind of impulse। उसके पीछे रीजन क्या है? दैट न्यूरॉन इज it is self excitable, okay, it can excite by itself also and it can excite whenever it gets a response from the external environment। ठीक है, तो ये क्या है? it is self excitable। second point क्या है? it has created resting membrane potential। this is one of the most important topic। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है? सिंपल है, देखो मैं फिर से आपको ये बता रहा हूँ। सपोज दिस इज some kind of box। ठीक है, ये जस्ट अज्यूम करो कि ये बॉक्स है and this box contains different kinds of positively charged ions। so just assume कि it contains equal number of positively charged ions and equal number of negatively charged ions। ठीक है, तो अगर दोनों का नंबर इक्वल है so they will diffuse randomly। ये आप लोगों ने पढ़ा है ना, जैसे कि गैस से कोई भी मॉलिक्यूल्स कैसे वो डिफ्यूज होता है ना। so they will diffuse, they will move in the random direction। ये क्लियर है? पहले मुझे बताओ। यस, इज इट क्लियर? यस और नो? यस सर। ओके, तो ये क्लियर है ना, मतलब कि अगर रैंडमली मूव होगा, इफ द नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज आयंस and if the number of negatively charged ions are equal, then definitely they will move randomly and they will disperse in such a way that the equilibrium is adjusted। but if I somehow if I have separated them, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, फिर सपोज दिस इज अगेन the same system but I have separated these positively charged ions and negatively charged ions by some kind of membrane। suppose I have in like I have kept some membrane which separates positively charged ions here। ठीक है, ये हो गया positively charged ions and this is the negatively charged ions। so मुझे बताओ कि किसमें gradient होगा? इसमें या इसमें? that is in the सेकेंड वन। second one will have gradient। okay, so this is how the gradient is created। तो अपना brain जो है, अपना body exactly uses the same mechanism। तो जब ये channel open होगा definitely the ions will move along their concentration gradient। ये फंडा क्लियर है? okay, so यस सर। this will move, they will create electrical signal, electrical impulse, है ना। so this is how electricity is generated by the movement of the ions। if you want, देखो अगर आप इसको रिलेट करना चाहते हो, देखो आपने मेरे ख्याल से you might have learned in the physics, देखो उसमें कुछ एक डायोड होता है, NPN टाइप ऑफ डायोड, ऐसा कुछ होता है। देखो उसमें भी क्या होता है कि the movement of the ion creates electricity। आपने पढ़ा ना सेमीकंडक्टर्स में, जब आयंस मूव करते हैं कुछ ऐसे ही होता है ना, बीच में पार्टीशन। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस, क्लियर है इतना? सो इन दिस सिस्टम ए जीरो ग्रेडियंट इज देयर बट यहाँ पे ग्रेडियंट क्रिएट हुआ है। ओके, अब अज्यूम करो कि मतलब ये तो जब ये चैनल ओपन होगा तो देन आयंस विल मूव एंड दिस विल क्रिएट द इलेक्ट्रिकल इंपल्स। तो ये एक बेसिक 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 क्या है? प्रोसेस है। इतना समझ में आया? सो दिस इज हाउ द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज जनरेटेड along the axon of the membrane of the axon। Please be honest, this is one of the most not the one of the most but quite difficult confusing topic। so is it clear? सबको समझ में आया यहाँ तक?
Yes, yeah, you all Yes, sir. can respond to the हाँ सर. stimulus ना. Okay, so my question should be stimulus for you and you should respond. ठीक है, इतना क्लियर हुआ. नेक्स्ट क्या है यहाँ पे? नेक्स्ट the polar ion channels in the neurons. देखो अपने मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में that we have different kinds of ion channels, है ना. So that responsible for the depolarization, polarization and the repolarization. इसका मीनिंग क्या होता है? डीपोलराइजेशन का मीनिंग क्या होता है? सपोज वी हैव क्रिएटेड द ग्रेडियंट. सपोज ये एक बीच में लाइन है व्हिच सेपरेट्स पॉजिटिवली चार्ज आयंस फ्रॉम द नेगेटिव वन. तो ये एक ग्रेडियंट क्रिएट किया. सो दिस स्टेट इज कॉल्ड एज व्हाट? पोलराइजेशन. इसको हम लोग क्या कहते हैं? वी कॉल दिस एज व्हाट? पोलराइजेशन. डीपोलराइजेशन पे क्या हो जाएगा? नाउ दिस आयंस विल like the polarity of the same structure will reverse, like it will be looking like this. Positive on the inner side and negative on the outer side. तो ये क्या हो जाएगा? Depolarization. और repolarization में क्या हो जाएगा? Again this will regain its polarity. मतलब again it will look something like this. So this is called as what? Repolarization. यहाँ तक क्लियर है कॉन्सेप्ट? यस. और ये सब में कौन रिस्पॉन्सिबल है? So for polarization, depolarization and for the repolarization, which one is responsible? This ion channel is responsible. Okay, यहां तक क्लियर है सबको? चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग. We'll see the next one. Next one is what? Like these are the different types of ion channels. मैंने ये आपके साथ डिस्कस किया था. Like the sodium, like in the when the neuron is not activated by some kind of stimulus, so during that condition the membrane of the axon, okay, the membrane of the axon is impermeable for the sodium channel. ये बात आपको याद रखना है. During the resting state it is impermeable for sodium ion. तो सिर्फ क्या आ सकता है? क्या जा सकता है? This potassium. Okay, so this type of channel is called as what? Leak channel. इतना क्लियर है? And this leak channel does not require any kind of stimulus or any kind of no, it requires stimulus but it does not require any kind of chemicals to open and close. ठीक है, तो ये रैंडमली ओपन होता है, क्लोज होता है, बट इसका मेन पर्पस क्या है? इसका मेन ये क्या है? दिस विल हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द पोटेशियम आयन अक्रॉस द मेम्ब्रेन. फिर सेकंड टाइप का कौन सा होता है? द सेकंड टाइप इज this ligand gated channel ion. आपको इस पे फोकस करना है because when we will learn the transmission of impulse through the synaptic gap, तो वहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है, ligand gated channel. तो ये कब ओपन होता है चैनल? जब इस पर कोई केमिकल बाइंड होगा, then it will open. इतना क्लियर है? और अगर आपको याद होगा, देखो मैंने आपको बताया था कि जो पफर फिश है that contains stereotoxin, एक केमिकल है, तो वो क्या करता है? that will blocks the that will attach on this receptor for the ligand. तो फिर उससे क्या होता है कि वो पर्टिकुलर न्यूरॉन में जो है ट्रांसमिशन नहीं होता है. ये मैंने आपको बताया था ना? yes or no यार? yes, you should say yes. okay, फिर नेक्स्ट दो और टाइप का कौन सा है? दिस मैकेनिकली गेटेड चैनल. मतलब ये कब ओपन होता है? जब इस पे कोई मैकेनिकल प्रेशर अप्लाई होगा, देन ये ओपन होगा, देन इट विल अलाउ द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सम आयंस लाइक सोडियम एंड द पोटेशियम. और एक और कौन सा है? वोल्टेज गेटेड चैनल आयन. और मैंने आपको बताया था कि दिस वोल्टेज गेटेड चैनल आयन इज प्रेजेंट इन ऑल द एक्सॉन, ऑल द न्यूरॉन्स ऑफ द एक्सॉन. सो दिस इज वाइडली like what we can say, this is widely distributed channel. कौन सा चैनल है ये? This is voltage gated channel. So this channel is widely distributed. Okay, so these are the few different type of channel which is responsible for the polarization, depolarization and repolarization of the axon. Is it clear? Yes, tell me yaar, yes or no? Again, like you are not responding, you are becoming irresponsive. नहीं समझ में आ रहा? नो सर, आया ही. चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट कौन सा है? ये तो मैंने आपको बता दिया था. नाउ की मतलब ये हम लोग देखते हैं कि जो है पोलराइजेशन जो है वो बनता कैसे है, मतलब कि पोलराइज स्टेट जो है वो जनरेट कैसे होता है. ठीक है, तो इसके पीछे रीजन क्या है?
एक सबसे पहले कि मैं ये फिर से रिपीट कर रहा हूँ एंड थोड़ा सा स्लो रेट में मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि क्या होता है कि जब कोई न्यूरॉन कोई स्टिमुलस कंडक्ट नहीं करता, जब वो एकदम रेस्टिंग स्टेट में होता है, उस समय द axon of that neuron is more permeable to the potassium ion and almost impermeable to the sodium ion. इसका मीनिंग ये होता है कि अगर जो पोटेशियम आयन है वो सेल के अंदर से वो बाहर जा सकता है, इट कैन कम आउटसाइड द सेल, तो बाहर के एनवायरमेंट में मोर पॉजिटिव आयंस आर गेटिंग एडेड, बट सोडियम जो है वो बाहर से अंदर नहीं आ सकता. So it means that the inner side is becoming more negative. Is it clear? ये समझ में आया? ठीक है? Yes, sir. इसकी वजह से क्या होता है कि due to this kind of situation, a polarized state is created. So this is called as polarization of the neuron. और ये क्यों होता है? Because of the leaky channel जो पोटेशियम को तो जाने देता है बट सोडियम को अंदर आने नहीं देता है. सेकेंड कौन सा है? some trapped anions like negatively charged proteins, मतलब कुछ प्रोटीन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं, some ATP, some sodium potassium pump. और मैंने आपको बताया था कि why this sodium potassium pump transports 2 potassium and 3 sodium at a time, because potassium का size जो है atomic size is very larger, so in this space 2 potassium can easily fit, but in the same space 3 sodium atom can easily fit. Sodium ion, ठीक है? and I hope आपको पता है कि सोडियम आयन का साइज छोटा होता है as compared to the sodium atom. ये भी आपको पता है ना? This is basic chemistry. ठीक है? Yes, sir. इतना क्लियर है? So these are the conditions. ये आपको याद रखना है. More permeable to the potassium and nearly impermeable to the sodium. Trapped anions like negatively charged proteins, ADP, and the sodium potassium ADP. So these are the responsible for the polarization of the neuron. फिर next यहाँ पे क्या है? How? Okay, and this is what? This is resting membrane potential. तो आप easily इसको measure कर सकते हो. If you insert some recording electrode, then you can easily measure the resting membrane potential. और वो कितना होता है? That is about -70 millivolt. ये एक वैल्यू है इसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का. इतना क्लियर है? और जब मान लो कि, तो ये देखो ये क्या है? दिस -70 इज द वैल्यू इन द पोलराइज्ड स्टेट. ये कौन से स्टेट का है? दिस इज इन द पोलराइज्ड स्टेट. और मैंने आपको बताया था कि दिस नेगेटिव साइन इंडिकेट्स व्हाट? that the inner side of the cell is more negative than the outer side of the cell. ये भी मैंने आपको बताया था. yes or no? Yes, sir. तो जब ये होगा like when this polarity will change, definitely this value may become positive. जब polarity change होगा, so now the inner side may become positively charged ion, positively charged, and outer side becomes negative. तो अभी हम लोग क्या लिखेंगे? Positive. अगर पोलैरिटी चेंज होगा तो मतलब ये भी आपको याद रखना है कि ड्यूरिंग द पोलराइज्ड स्टेट, ओके, द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज -70, बट ड्यूरिंग द depolarized state the resting membrane potential may go into the positive value, not exactly 70 but it can go up to 50 millivolt, 40 millivolt, है ना, even 90 millivolt. मतलब वो वैल्यू कौन सा होगा? पॉजिटिव होगा. so this is in the polarized state. और ये कौन से स्टेट में है? दिस इज इन द पोलराइज्ड स्टेट. यहां तक क्लियर है सबको? Yes, sir. चलो फिर नेक्स्ट कौन सा है यहाँ पर? उसके बाद तो जैसे मतलब क्या होता है कि जैसे ही कोई न्यूरॉन के पास सिग्नल आता है, अज्यूम करो कि ये मैंने यहाँ पे एक छोटा सा न्यूरॉन ड्रॉ कर दिया, समथिंग लाइक दिस. ठीक है, अज्यूम करो कि ये एक न्यूरॉन हो गया और ये उसका क्या हो गया? एक्सॉन. एंड आई होप यू नो दैट द स्टिमुलस इज जनरेटेड एट द एक्सॉन हिलॉक रीजन. यहाँ पे जो होता है एक्सॉन हिलॉक, है ना, वहां पर क्या होता है कि स्टिमुलस जनरेट होता है. तो ये सपोज कि ये सम डेंड्राइट्स रिसीव्ड सिग्नल, मतलब इसने कहीं से सिग्नल लेके आया, फिर यहाँ पे प्रोसेसिंग हो गया, फिर यहाँ से स्टिमुलस जनरेट होता है. तो जैसे ही यहाँ पर वो सिग्नल आता है, द मेम्ब्रेन ऑफ दिस पर्टिकुलर रीजन, मैं यहाँ पे सिर्फ बॉक्स में बता रहा हूँ, सो दिस बॉक्स इज रिप्रेजेंटिंग
सेगमेंट ऑफ द एक्सॉन। ठीक है, सेम फॉर दिस, मतलब कि मैं पूरा यहां पर भी इसको ले सकता हूं ऐसा। तो सपोज कि ये हो गया ए एंड ये हो गया बी। इनिशियली सब पॉजिटिव था, इनिशियली ऑल द साइड्स वाज पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव था? बिकॉज द पोटेशियम आयन वाज हाँ मूविंग अक्रॉस इट बट द सोडियम आयन कुड नॉट मूव इनसाइड इट। तो उसके वजह से क्या हो कि पोलैरिटी बना था। यहां तक क्लियर है? बट एज सुन एज दिस एक्सॉन रिसीव्स सिग्नल, देन व्हाट हैपेंस, द पोलैरिटी चेंजेस। पोलैरिटी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। So how it will change? Now the potassium, now the sodium will move inside the cell, and so this will create the reversal of the polarity. लेकिन आपको first point, membrane becomes freely permeable to the sodium, जो कि पहले नहीं था, and this causes the rapid influx of the sodium ion. So this will cause reversal of the polarity, and this results in the depolarization state. Okay, and the electric potential difference created across the plasma membrane is responsible for the generation of the potential difference. Is it clear? Be honest. यस सर। हाँ सर। Yes, sir. चलो चलो ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे क्या है? अब देखो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था, मैं अगेन आई एम शोइंग यू। देखो ये अगर आप देखोगे ग्राफ, इफ यू सी दिस ग्राफ, देखना इट इज गोइंग अपवर्ड टुवर्ड्स द पॉजिटिव वैल्यू। क्यों जा रहा है? बिकॉज द पोलैरिटी इज गेटिंग चेंज। तो अज्यूम करो कि ये वैल्यू जो है यहाँ पर क्या है? +40 है, +40 मिली वोल्ट यहाँ पे जो वैल्यू है। तो इसका मीनिंग क्या हो रहा है कि पोलैरिटी जो पहले पॉजिटिव बाहर था और नेगेटिव अंदर था, अब क्या हो रहा है कि नाउ नेगेटिव इज आउटसाइड एंड पॉजिटिव इज इनर साइड। सो दिस कॉजेस रिवर्सल ऑफ द पोलैरिटी। तो ये स्टेट, तो ये जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? पोलराइज्ड स्टेट। और ये कौन सा हो गया? डीपोलराइज्ड स्टेट। इसकी वजह से क्या होता है कि जो बगल वाले जो होते हैं आयन चैनल्स, दे विल आल्सो अलाउ द इनटेक ऑफ द सोडियम आयन। तो जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे एक और सर्कल ड्रॉ कर दिया, वहां पर क्या हो रहा है कि नाउ द आउटर साइड इज बिकम पॉजिटिव, इनर साइड इज बिकम नेगेटिव। तो देखो दोनों के बीच में, मतलब पॉइंट बी और पॉइंट सी के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है। अग्री विथ मी दिस और नॉट? होगा कि नहीं होगा ये? So definitely what will happen, the electricity will flow from inner side from B to C and from the outer side from C to B होगा। और यही इमेज जो है आपके बुक में दिया है, इफ यू सी दिस, देखो यहाँ पर दिख रहा है ये जो इमेज है। सो व्हाट इज दिस शोइंग? देखो इनिशियली क्या हो रहा है कि वंस दिस सिग्नल, अज्यूम करो कि यहाँ पर क्या आ गया? कोई स्टिमुलस आ गया। So due to this stimulus, what happened? The polarity of point A got changed. अब इतना समझ में आया कि उसका पोलैरिटी क्यों चेंज हुआ है? यस, तो आउटर साइड बिकम्स पॉजिटिव, इनर साइड बिकम्स नेगेटिव, एंड द सेम स्टिमुलस विल कॉज द फ्लो। अब देखो ये अगर नेगेटिव हो जाएगा उसके बगल वाला, ओके, एंड दिस बिकम्स एंड द सराउंडिंग रीजन बिकम्स पॉजिटिव। तो ये होता है ना यार कि द इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम द पॉजिटिव साइड टू द नेगेटिव साइड। ये भी हम लोगों ने पढ़ा है ना फिजिक्स में, along the potential difference, है कि नहीं? तो इलेक्ट्रॉन जो है इनर साइड में कहां से कहां मूव करेगा? A to B। आउटर साइड में कहां से जाएगा? B to A, बिकॉज देखो ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज है, तो ऐसे मूव करेगा ना ये। हाँ सर। ठीक है, तो ये हो गया, इतना क्लियर है? सो दिस इज हाउ। और ये जो वेव है, तो देखो जनरेट ऐसे हो गया, अब कंडक्शन भी ऐसे हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे जो एग्जैक्टली हुआ, फिर देखो उसके बाद क्या होगा कि नाउ दिस रीजन will become negative, this will become positive। तो फिर इलेक्ट्रिसिटी ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, ऐसे ऐसे करके along the length of the axon it will flow। So this is how the conduction of electrical impulse takes place। मैं थोड़ा फास्ट गया, बट आई होप ये समझ में आया सबको, क्योंकि हम लोगों ने इसके पहले पढ़ लिया है। इतना क्लियर है? नहीं तो अभी मुझे बता सकते हो? पक्का? यस? हाँ Yes, सर। sir. और ये कुछ दिया है, मतलब कि जो पोलैरिटी है ना, मतलब कि देखो जो सिग्नल की वजह से मेम्ब्रेन है ना, द राइज इन द स्टिमुलस इंड्यूस्ड परमिएबिलिटी ऑफ द सोडियम इज नॉट वेरी लॉन्ग लिव्ड, इट इज वेरी शॉर्ट लिव्ड। मतलब स्टिमुलस की वजह से जो मेम्ब्रेन
for some time it became permeable for the sodium. Now again it will become impermeable to the sodium and again it will become permeable to the potassium. तो इससे क्या होगा कि again सोडियम अब अंदर नहीं आएगा, अब सिर्फ पोटेशियम बाहर आएगा. तो कुछ ऐसे हो जाएगा. देखो मैं आपको फिर से यहाँ पे ड्रॉ करके बता रहा हूँ. सपोज ये क्या है, these are the 3 axons. ये क्या है, these are the 3 different axons, या फिर एक ही एक्सॉन का 3 अलग अलग कंडीशन है. ठीक है. और Yes, sir. तो आउटर साइड में पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव. ठीक है. तो ये पॉजिटिव नेगेटिव क्यों आता है? बिकॉज ऑफ द आयन चैनल्स. आपको पता है ना. तो अब मुझे बताओ कि पोलराइज स्टेट में, पोलराइज जो स्टेट होता है उस समय सोडियम चैनल ओपन होगा कि क्लोज होगा? टेल मी, क्या होगा ड्यूरिंग द पोलराइज स्टेट? द सोडियम चैनल विल बी ओपन और द क्लोज. ये हो गया पोलराइज स्टेट, ये हो गया डीपोलराइज्ड, एंड ये हो गया रीपोलराइज. तो मुझे बताओ कि पोलराइज स्टेट में सोडियम चैनल ओपन होगा कि क्लोज होगा? टेल मी फास्ट. ये मीटिंग जल्दी इन्होंने वाला, जल्दी बताओ मुझे. बताओ फटाफट. यस, तो closed होगा. डेफिनेटली क्लोज होगा ना, बिकॉज दिस मेम्ब्रेन इज नॉट परमिएबल फॉर द सोडियम. तो मैं लिखता हूं यहाँ पे कि impermeable, IMP for the sodium. Okay, IMP stands for the impermeable, not important but impermeable. तो पोलराइज स्टेट में सोडियम अंदर नहीं जा रहा, बट जैसे ही इसको स्टिमुलस मिलता है, so it becomes permeable to the sodium ion. तो उसके वजह से क्या हो रहा है कि पोलैरिटी जो है वो चेंज हो गया. क्यों? बिकॉज जो सोडियम आयन था वो सेल के अंदर चला आया, तो बाकी बचा क्या बाहर? नेगेटिवली चार्ज आयंस. तो ये हो गया डीपोलराइज्ड स्टेट. आफ्टर सम टाइम क्या होगा? दैट पार्ट विल अगेन बिकम रीपोलराइज्ड. क्यों? बिकॉज अगेन इट बिकम इम्परमिएबल फॉर द सोडियम एंड परमिएबल फॉर द पोटेशियम. तो अब पोटेशियम जो है अंदर से बाहर जा रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? रीपोलराइजेशन. इतना क्लियर है? सो दिस इज अबाउट द पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन एंड द रीपोलराइजेशन. ठीक है. उसके बाद एक और इवेंट होता है. उसके बाद फिर क्या होता है कि Yes. उसके बाद एक छोटा सा इवेंट क्या होता है कि सोडियम पोटेशियम पंप वापस से आते हैं. तो उन लोग क्या करते हैं? सोडियम को अंदर से बाहर लेते फिर पोटेशियम को अंदर भेजते हैं, सो दैट द अमाउंट ऑफ सोडियम अगेन बिकम्स हायर ऑन द आउटर साइड. बट ये तीनों क्लियर है अभी फिलहाल इसके लिए. Exactly, you can take screenshot or you can save this image. Okay, polarized state, depolarized state and repolarized state. ठीक है, या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर सेव कर लो. ओके, इतना. हाँ सर. हाँ, तो इसके बाद फिर नेक्स्ट जो है, अब देखो, अगर ये एक्सॉन रीपोलराइज्ड हो गया तो इट मींस दैट दिस इज अगेन रेडी फॉर द न्यू स्टिमुलस. Yes, this neuron will Yes. for the new stimulus. तो मतलब कि एक स्टिमुलस और दो स्टिमुलस को, मतलब कि जैसे मान लो कि कोई आपको टच करता है and if that person touches you after some time then you can sense ना. बट अगर आपको बार बार मतलब सडनली बहुत ही फ्रिक्वेंटली टच कर रहा है then your body will not be able to differentiate कि उसने कितनी बार टच किया है. जैसे एक और एग्जांपल आता है, देखो फैन जो बहुत ही फास्ट घूमते रहता है, so it gives feeling ना कि the fan का जो ब्लेड है that is स्टेबल, मतलब कि वो कंप्लीटली पूरा एक सॉलिड, मतलब उसमें कुछ गैप नहीं है. देखो जैसे मूवीज में जो होता था पहले है ना, जैसे कि बहुत सारे इमेजेस एक साथ अपनी बॉडी में आते हैं, मतलब अपने आईज के सामने आते हैं. ये सब आपने देखा होगा. मतलब इसका मीनिंग क्या हो रहा है कि मतलब कि अपने न्यूरॉन को वापस से एक्ट करने के लिए, टू रिस्पॉन्ड बैक अगेन, इट नीड्स सम टाइम. जैसे मान लो कि अगर अभी इसने एक स्टिमुलस को सेंड किया, so it needs some fraction of time like microseconds, few microseconds or few milliseconds to respond again for the new stimulus.
तो ये फर्स्ट स्टिमुलस और सेकंड स्टिमुलस के बीच में जो टाइम होता है दैट इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टरी पीरियड। इतना समझ में आया? द टाइम रिक्वायर्ड बिटवीन द फर्स्ट स्टिमुलस एंड द सेकंड स्टिमुलस, द टाइम रिक्वायर्ड by the neuron to become sensitive for another impulse is called as refractory period। ठीक है, अगर कोई स्टिमुलस रिफ्रैक्टरी पीरियड के बीच में आता है तो वो अपना न्यूरॉन जो है उसके लिए कोई रिस्पॉन्स नहीं शो करेगा, बिकॉज अभी तक वो कौन से स्टेट में था, डीपोलराइज्ड स्टेट में। समझ में आ रहा है?